Hello everyone, welcome back to Ikjot Nursing Academy. Today we are going to discuss one topic which is the most important topic from psychology in nursing. So it is memory, and I think so we all feel it's a common word, memory, because we all learn the things and we store in our memory, then we pass the exams, we do our daily work routine, everything, whatever it is. So it's a very common word, and it is one topic in nursing, also in psychology nursing, and which is very important from exam point of view also. In exam, basically in definition of memory, what are the various factors which affect memory, and what are the main types of memory. These three things are very common asked by the examiner in your exam. So today we are going to discuss this thing. I think so my video will helpful to you, as nowadays all the education pattern is by this video conferencing only, and sometimes we are not able to connect by networks, and we are not able to understand the things. So main motive of this video is for the nursing students only which are studying nursing, either it is GNM or BSc nursing. So it is the one of the topic from first year nursing. Now we will start. What is memory? Memory plays a very important role in our learning and psychological growth. Without memory, we can't learn anything, because if we are not remembering anything, so how we will grow? From the childhood itself, we learn how to write, how to eat, how to walk, everything, our daily needs also. So it's a very important word to us, memory. Through memory of our past experience, we handle our new situations. For example, I will give you example as we are students of first year, or either of any year also. So, what from your past experience, once you appeared in an exam, for example, and you are not able to perform well. So, because on that time you didn't study anything. So what you will do next time, from that experience you feel this thing, that next time when you go for exam, you have to prepare for exam first, then you have to go for exam. पहले आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, नेक्स्ट तभी आप एग्जाम देने जाओगे तो ही आपका एग्जाम अच्छा होगा. तो दैट इज फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस. एग्जाम का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट एग्जाम के लिए सोचा, और तभी आप उस चीज़ों को हैंडल कर पाते हो. Memory is a complex process. If we are talking all over, it's a complex process also, which involves learning, retention, recall, recognition. 4 stages are there. That is, first is learning, second is retention, third is recall, and last is recognition. So now we will talk about the definition. What is the definition of memory? So by the different authors we are having different definitions, and you can learn any one or two definitions by the author with the name, that you can't change while writing your final exam, because it will decrease your marks. So first is, memory is related to the remembering of previously learned objects. So what is memory? It's a remembering of previously learned things that we are storing in our brain as a part of a memory, and we can recall when we need it. Second definition by Rigman, that is the power that we have to store our experiences and to bring them into the field of consciousness. Sometimes after experiences have occurred, it terms as memory. So what is this? That by different authors we are having different definition. I am telling you, you can learn from anywhere. If you want to learn these two, you can learn these two. 2 is the enough definitions when you are writing exam. There is no need to learn more, but 2 you have to be by heart.
Next is, as we already talked, that we are having 4 stages of memory process. So first is learning, retention, recall, recognition. First thing is learning. What is learning? When we are learning something. For example, now I am teaching you the whole process of learning. This first stage is, this is the first stage when you are learning anything. During any class you are learning any topic, that is your first stage, that is learning. Then is retention. After the class you have to retain that content material with you, that what the teacher told you, आपको क्या सिखाया गया आपको याद रखना है. उसके बाद रिकॉल, उसको रिकॉल करता है. रिटेंशन के बाद आप उसको रिकॉल करते रहो. अगर आप उसको बार बार दोहराओगे नहीं, रिकॉल मीन्स रेपिटेशन, रिकॉल नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तो आप भूल जाओगे. तो थर्ड स्टेज इज रिकॉल. लास्ट इज रिकॉग्निशन. अगर आप रिकॉल करते हो डिफरेंट टाइम्स एक ही चीज को, तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे व्हेन यू वांट दैट कंटेंट मटेरियल. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट types of memory. Basically we are having 3 main types of memory, that is sensory memory or immediate memory, short term memory or recent memory, long term memory or remote memory. So basically first is sensory memory, and other name for sensory memory is immediate memory. Means for few seconds we are recalling something, that is known as immediate memory or short term memory. So इसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं. क्या है ये? इट इज अ मेमोरी वेयर मेमोरी ट्रेस आर रिटेन्ड एट सेंस ऑर्गन्स फॉर 1 second ओनली. इट्स फॉर 1 second ओनली एंड द मटीरियल वी फॉरगॉटन, हम भूल जाते हैं उसके बाद. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन डिक्शनरी हमने खोली है, डायरेक्टरी हमने खोली है, हमने एक नंबर रीड किया, फॉर एग्जाम्पल 426457, हमने डायल किया, डायल करने के बाद हम उसे भूल जाते हैं जब हम बात कर लेते हैं. तो that comes under immediate memory or sensory memory. Next is short term memory or recent memory. So short term memory क्या होती है? Short term memory holds a relatively small amount of information. कोई एक small amount of information की about 7 items or 7 words for a short period of time. हम ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रखते हैं, बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम याद रखते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए. दैट इज जो हमने इमीडिएट मेमोरी पढ़ी थी उसमें हम सिर्फ 1 second के लिए रिकॉल करते हैं. इसमें हम 30 to 40 seconds के लिए भी समटाइम रिकॉल कर लेते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. सो इन दिस मेमोरी वी लर्न मटेरियल इन रिटेन इन अवर ब्रेन, इन अवर न्यूरल कनेक्शंस, बट उसके बाद उसका कनेक्शन टूट जाता है. हम थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को याद रखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, और हम उस चीज़ को याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इसलिए हम उसे भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसका प्रोसेस फॉलो नहीं करते, हम उसको रिटेन नहीं करते, रिकॉल नहीं करते, रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसलिए हम पहला ही स्टेप करते हैं और भूल जाते हैं. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिमोट मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिमोट मेमोरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, एंड इट्स अ मेमोरी वेयर द मटीरियल इज रिटेन्ड फॉर मेनी मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स. बहुत लंबे टाइम तक हम कुछ चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम गैदर करके रखते हैं. दैट इज कमिंग अंडर अवर रिमोट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पीपल डू रिमेंबर द मूवमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड. चाइल्डहुड की जो उनको मूवमेंट्स होती हैं हमारी, हम याद रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कौन से स्कूल में पढ़ी हूँ मुझे याद होगा. कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स जो स्कूल एज में मैंने अचीव किए होंगे, या कुछ पर्टिकुलर पिकनिक्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे हैप्पीनेस फील करवाती है, वो चीज़ें मुझे याद रहेंगी. दैट इज स्टोर्ड इन माई रिमोट मेमोरी. दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रिमेंबर दैट. दैट इज द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ मेमोरी. नाउ वी विल डिस्कस one more important thing about memory, that is factor influencing memory. What are the factors which are affecting memory, which are influencing memory? That basically the factors are divided into 2 parts, that is intrinsic factors and extrinsic factors. 2 factors are there, that is extrinsic factors, intrinsic factors, or we can say other, if you want to learn in simple language, internal factors and external factors also you can say.
So first we will discuss external factors. External factors means environmental factors. What are the things which are around us? That is our external factors which affects our memory. जो हमारी memory को affect भी कर रहे हैं. First is meaningfulness of material to be memorized. जो भी चीज़ हम याद करना चाहते हैं वो कितनी important है हमारे लिए, उसका कितना meaning है हमारे लिए. Meaningfulness of material to be memorized. What is the useful material suits our needs, motives, हमारे purposes के साथ attach होता है. जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसको याद करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप इस टॉपिक को याद करोगे क्योंकि आपके एग्जाम में आना है और आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है. अगर ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आ रहा, आपको उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, बट आपकी नर्सिंग में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ज़्यादा, रेदर देन इट्स कुछ पार्ट आप लोग कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन के रिगार्डिंग पढ़ोगे पर ज़्यादा पार्ट नहीं पढ़ोगे, तो आप क्या करोगे, उसको भूल जाओगे. दैट इज कि हमारे लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है. नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू बी मेमोराइज्ड. कितनी अमाउंट है जब हमें मटेरियल है कि हम उसको मेमोराइज करें. अगर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रिमेंबर करने की कोशिश करोगे तो वो एक साथ आप नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो आप क्या करोगे, आप अपने टास्क को देखोगे कि हाँ इतना आंसर है, इतना मुझे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मुझे 2 पेजेस बहुत हैं, तो आप 2 पेजेस ही याद करोगे. So success in the task of effective mobilization depend upon the great extent upon the size and quantity of the material to be memorized. Means आपका अगर साइज बहुत ज़्यादा होगा तो आपको याद करने में भी उतना ज़्यादा, मेमोराइज करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा रेपिटेशन की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू वोकलाइज रिस्पॉन्स. अब आपको कितना टाइम चाहिए कि आप उसके रिस्पॉन्स को देख सको. मेमोरी स्पैन इज कंसिस्टेंटली हायर फॉर शॉर्ट वर्ड्स देन द लॉन्ग वर्ड्स. मीन्स आपकी मेमोरी स्पैन जो है, अगर आप शॉर्ट वर्ड कोई रिमेंबर कर रहे हो उसके लिए ज़्यादा होगा, और जो अगर कोई लॉन्ग वर्ड है उसके लिए आपको दोबारा रेपिटेशन की टाइम ज़्यादा लगेगा. आपको टाइम स्पैन जो है वो ज़्यादा डिपेंड करना पड़ेगा. स्पेंड करते हुए आपको उस वर्ड को ज़्यादा टाइम रिपीटली याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्शंस. कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं हमारे अराउंड जब हम कुछ कर रहे हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शंस इन द प्रेजेंट सिचुएशन, लाइक पुअर परफॉर्मेंस, पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द लेक्चर. आप कुछ सुन रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेक्चर जो है वो वॉइस पीछे कुछ और आ रही है, तो दैट इज डिस्ट्रैक्शंस. These are all the external factors. Now we are moving to the intrinsic factors or the internal factors जो हमारे खुद के factors हैं. First is very important, that is age of the individual. Age of the individual is, this is the factor which definitely affects our memory span. Like between the age of 16 to 26 years of age, यंगस्टर्स कैन रिमेंबर बेटर देन द एज्ड वंस. इसीलिए सारे करिकुलम्स, लाइक आप अभी टीन एज में हो, नर्सिंग आपने ज्वाइन किया है, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपकी एज जो है वो 16 to 26 के बीच में है, ज़्यादातर 17 to 18 होती है. और करिकुलम आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट हो जाती है बाय द एज ऑफ 22 और 23. तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम तक आपका जो मेमोरी स्पैन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है. वो एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सारे करिकुलम्स, मेन इंपॉर्टेंट करिकुलम्स आपके उसी स्टेज में आप पढ़ लेते हो एज की, कि आपको अच्छे रिकॉल हो जाए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी. वेरी यंग चिल्ड्रन कैन नॉट रिटेन एंड रिमेंबर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स. अगर आप फॉर एग्जाम्पल, आप सबको ध्यान होगा जब आप बहुत छोटे थे, 4 to 5 ईयर्स के थे या 3 ईयर्स के थे, तो आप बहुत स्मॉल वर्ड्स याद करते थे. आपके जो क्लास करिकुलम है हमारा एजुकेशन का, वो बहुत वैसा स्ट्रक्चर्ड है कि आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स के वर्ड्स, सेंटेंसेस मेक करते थे, वैसे आप पढ़ते थे. वो आपका सिलेबस होता था फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए, और धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है.
तो क्यों, आप जैसे ही आपकी एज ग्रो कर रही है, आपका मेच्योरिटी लेवल ग्रो कर रहा है, वैसे ही आपकी रिटेंशन पावर भी ग्रो कर रही है। और मैक्सिमम रिटेंशन पावर कब होती है? बाय द एज ऑफ 16 to 26 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट इज थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन इंटरनल फैक्टर्स इज विल टू लर्न। आपको लर्न कैसे करना है? अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आप विल है आपके अंदर कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज आ जाएगी। आप उस चीज को बहुत ध्यान से सीखोगे और आप बहुत जल्दी लर्न कर लोगे। मटेरियल रीड, हेयर्ड और सीन विदाउट इंटरेस्ट। अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप जो मटेरियल सुन रहे हो, देख रहे हो, इट्स डिफिकल्ट टू रिमेंबर और रिकॉल इट लेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट। बट अगर इफ इट इज, व्हेन वी कैन से इट इज इजी, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, वे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब उसको ऑटोमेटिकली गेन करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड अटेंशंस। इंटरेस्ट एज वेल एज अटेंशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग एंड मेमोराइजिंग बोथ। लर्निंग के लिए भी जो है इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंशन के लिए भी इंटरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट पीपल विल हैव बेटर मेमोरी देन लेस इंटेलिजेंट पीपल। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। अब बोलोगे मैम रेस्ट एंड स्लीप कैसे इफेक्ट करती है हमारी मेमोरी को? कैसे करती है? एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट हेल्प टू रिलीज फटीग। हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर पावर ज़्यादा होती है, वो फ्रेश माइंड होता है, जिसमें हम नेचुरली जो हम लर्न करेंगे वो अच्छा लर्न होता है। हमें अगर हम कुछ भी चीज़ पे ध्यान लगाएंगे वो अच्छी होती है, रेदर देन कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड है और अब हम लर्निंग कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल कंडीशंस। Medical conditions in major causes for memory loss are contributed by medical conditions and sometimes eating habits. It also affects our learning process. Next, it's one cause for less, it also affects memory, that is brain tumors. This is a disease condition that causes the patient to forget person's names, people's name that interact with every day and place they have to go every day also. They can't remember. In case of brain tumor, they have less memory span and they lose the things very easily. They forget the things very easily in the case of patient with brain tumors. This is the thing which we discussed about memory. Thank you so much. I hope my video will help you to learn this topic, and if you like my channel, please like, share and subscribe my channel. And if you are having any doubt and if you want any video from my side, so you can comment in type in comment box. I will try to fulfill your answers. Thank you so much for listening.